नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कर्नाटका सरकार ने अनुसंधान और नवाचार गतिविधियों में सहयोग के लिए लिवरपूल विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बीदर दक्षिण के मदकनेली ग्राम के सरकारी पीयू कॉलेज में खेलकूद स्पर्धा। कर्नाटका सरकार 25,000 शिक्षक रिक्तियों को भरने की योजना बना रही है, मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा। मूडा मामला, आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने कहा, लड़ाई जारी रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। राज्य बाल भवन सोसाइटी बेंगलुरु, जिला प्रशासन, जिला पंचायत, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बाल भवन समिति बीदर और राष्ट्रीय युवा सुरक्षा एवं कल्याण संघ बीदर के संयुक्त आश्रय के बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं शुरू हुई। इसी के तहत बीदर दक्षिण के मदकनेली ग्राम में रहे सरकारी पीयू कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए खेलकूद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस खेलकूद प्रतियोगिता में छात्राओं में 100 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान पर सुष्मिता, साइकिलिंग में महजबीन प्रथम स्थान और खो खो में जय भवानी ग्रुप को प्रथम स्थान हासिल हुआ। छात्रों में बैडमिंटन में लक्ष्मीकांत गणपति, वेटलिफ्टिंग में शादुल शाह और वॉलीबॉल में हजरत टूपू की टीम प्रथम स्थान पर रही। इस मौके पर नेहरू युवा केंद्र के जिलाधिकारी मयूर कुमार, कर्नाटका स्पोर्ट्स विंग के राज्याध्यक्ष मोहम्मद परवेज खान ने सभी विजेताओं को पुरस्कार से सम्मानित किया। इस अवसर पर शिक्षण विभाग, युवा केंद्र और बाल भवन के अधिकारी आदि उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में कराटे मास्टर सूर्यकांत मोरे और कॉलेज की शिक्षिका ने बात की। कैमरामैन महेश का कवरेज। ऐसे अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ಬೀದರ್ ಅವರ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾ ಎಸ್.ಕೆ, ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಭಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೀದರ್, ಶ್ರೀ ಎಂ.ಡಿ. ಪರ್ವೇಜ್ ಖಾನ್, ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಿಂಗ್ ಬೀದರ್, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್, ವೈಜನಾಥ್ ಅವರು, ಮತ್ತು ಗುರುರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು, ಜಗದೀಶ್ ಅವರು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಅವರು, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮುತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಇಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನೀವು ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ, ಭಾಳ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ ಬಾಲ್ ಭವನ್ಗೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿರೋ ಇದೇ ಏರಿಯಾ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಬಾಲ್ ಭವನು. ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಸರ್ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ನೀವೇನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿದರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮತ್ತು ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸು ಕಲಿಸಿದ್ರು ನಮಗೆ ಇವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದು ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು, ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಅದು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೈದಾನ ಇತ್ತು, ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಆಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ದಲ್ಲ, ವಿವಿಧ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೀದರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಓಕೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಓದೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಓದಬೇಕು, ಹಂಗಂತ ಓದೋದು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ಇದೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇರಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಇದಾವೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಕೊಡಬೇಕು. ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತೀರಿ? ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡ್ತೀರಿ? ಎಷ್ಟು ತಾಸು ನೋಡ್ತೀರಿ? ಹಾಂ, ಸೊ ಈಗಿನ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇಂಥ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿರೋದ್ರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಇದು. ಈ ಬಾಲ್ಗಂಧರ್ವದಲ್ಲಿ ವಾರ ಈಗ ಈ ವಾರ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರಿಸಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಲೆ ಇದೆ, ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೋ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಚಲೋ ಇದ್ದಾರೋ ಯಾರು ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಆರಿಸಿಬಿಟ್ಟು। कर्नाटका के कोडिगल के विधायक AR कृष्णा मूर्ति की
माताजाई गुरम्मा बी राचैया के निधन पर बीदर में अम्बेडकर युवा सेना ने श्रद्धांजलि अर्पित की। आज सेना के राज्य अध्यक्ष राजकुमार गुनल्ली सहित अन्य में शहर में श्रद्धांजलि देकर मीडिया से बात की। कैमरामैन महेश जिगे का कवरेज। ऐसी अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಬಿ ರಾಚಯ್ಯ ಅವರು ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾದ ಗೌರಮ್ಮ ಅವರು ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ ಇದೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮೌನಾಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ನಾವು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ನಮನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಸಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲೆಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಜೈ ಭೀಮ್, ನಮೋ ಬುದ್ಧ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಬಿ ರಾಚಯ್ಯನವರವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಇದನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಕಾರಣ ನಾವೊಂದು ಶೋಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೋದರಾದಂಥ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವರ ತಾಯಿ ತಿರುಗಿನ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಶೋಕ ಸಂದೇಶ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಹಿಂದ್. ರಾಚಯ್ಯವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯವರು ಗೌರಮ್ಮ ಅವರು ಇಂದಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅಗಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುವಂತಹ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಅವರು ಎದೆಗುಂದದೆ ಈ ಒಂದು ದುಃಖವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಹಿಂದ್. रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। देखिए बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को अनुसंधान और नवाचार गतिविधियों में सहयोग के लिए लिवरपूल विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। एक बयान में सरकार ने इस साझेदारी को शिक्षा और अनुसंधान में अधिक सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। इस समझौते पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उद्योग मंत्री MB पाटिल, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर MC सुधाकर, लिवरपूल विश्वविद्यालय के कुलपति टीम जोनस और प्रोफेसर कुलपति तारिक अली की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। सरकार ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अनुसंधान और नवाचार गतिविधियों, शिक्षा सहयोग को मजबूत करना तथा साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना करना है। केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कर्नाटक के स्कूल शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा है कि राज्य सरकार इस शैक्षणिक वर्ष में 25,000 शिक्षकों के पद भरेगी और आगामी बजट में विभाग को आवश्यक वित्तीय आवंटन करने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से विशेष अनुरोध किया जाएगा। दावनगिरी जिले के जागलूर तालुके के हुंजगीपुरा में एक सरकारी हाईटेक स्कूल का उद्घाटन करने के बाद जिसे MLC और भाजपा नेता एन रवि कुमार ने वित्त पोषित किया है।
मधु ने कहा, पिछली सरकार ने 13,000 शिक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी दी थी और हमने उन्हें भरा। 25,000 शिक्षकों की नियुक्तियों से सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों में भारी कमी आएगी। कल्याण कर्नाटक के छात्रों को शिक्षित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा और हम इस क्षेत्र में 80% रिक्तियों को भरने की योजना बना रहे हैं। अनुदान प्राप्त स्कूलों में रिक्तियों को भी भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न स्कूलों में 1.08 करोड़ छात्र पढ़ रहे हैं और सरकारी स्कूलों को कमरों और शौचालयों से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिनका निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने कहा कि वह मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मोड़ा द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की पत्नी बीएम पार्वती को वैकल्पिक स्थल आवंटित करने के मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। कर्नाटक उच्च न्यायालय की धारवाड़ पीठ ने न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने शुक्रवार को मामले में उनकी याचिका खारिज कर दी, लेकिन याचिकाकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने कहा कि इस फैसले से वे विचलित नहीं हुए हैं। वे इस मामले में अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि यह इस मामले में अंतिम फैसला नहीं है। मैसूर लोकायुक्त पुलिस ने याचिका की सुनवाई के दौरान 27 जनवरी को मामले की जांच में प्रगति की रिपोर्ट उच्च न्यायालय को सौंपी। अब चूंकि उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मामले में याचिका खारिज कर दी है, इसलिए लोकायुक्त अधिकारी जांच जारी रखेंगे और बाद में बेंगलुरु में निर्वाचित प्रतिनिधियों से संबंधित विशेष अदालत को अंतिम रिपोर्ट सौंपेंगे। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। राज्य सरकार द्वारा जारी कर्नाटक माइक्रो फाइनेंस जबरदस्ती कार्रवाई की रोकथाम अध्यादेश 2025 का बचाव करते हुए कानून मंत्री एस के पाटिल ने शुक्रवार को कहा कि यह किसी के मूल अधिकार पर अंकुश नहीं लगाता है और इसने ऋणदाताओं के हितों की अनदेखी नहीं की है, न ही ऋण वसूली को प्रतिबंधित किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि अध्यादेश सदनों में पेश किया जाएगा और एक मजबूत कानून बनाने से पहले विधायकों की राय ली जाएगी। पाटिल ने कहा कि अपंजीकृत या बिना लाइसेंस वाले ऋणदाता ऋण नहीं दे सकते या चक्रवृद्धि ब्याज या दंड ब्याज नहीं लगा सकते। ऐसे ऋण कानून के तहत नहीं दिए जा सकते और ऐसे मामलों को अदालत में भी नहीं ले जाया जा सकता। उन्होंने कहा, अगर अपंजीकृत एजेंसियां द्वारा ऋण वसूली के ऐसे कृत्यों को मूल अधिकार माना जाता है तो इसका मतलब है कि संविधान ऐसे लोगों की रक्षा कर रहा है जो ऐसे अवैध कृत्यों में शामिल हैं। हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं। हमने कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया है कि पंजीकृत एजेंसियां ऋण नहीं दे सकती या वसूल नहीं कर सकती हैं। हमारा अध्यादेश उन पंजीकृत माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के खिलाफ है जो उधारकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं। पाटिल ने 5 लाख रुपए के जुर्माने का बचाव किया, जिस पर राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जुर्माने की राशि ऋणदाताओं द्वारा दिए गए ऋण की राशि पर आधारित नहीं है, बल्कि यह उनके द्वारा अपने उधारकर्ताओं पर डाले जाने वाले दबाव और उत्पीड़न पर आधारित है। केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ एक नाबालिग लड़की पर कथित यौन हमले के लिए यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 और आईपीसी के प्रावधानों के तहत अपराधों का संज्ञान लेने वाले ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया। यह देखते हुए कि अपराध जांच और आपराधिक जांच विभाग सीआईडी द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट बरकरार रहेगी, उच्च न्यायालय ने मामले को नए सिरे से विचार करने और सीआईडी द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत सामग्री और इस आदेश में की गई टिप्पणियों पर विचार करते हुए उचित आदेश पारित करने के लिए ट्रायल कोर्ट को वापस भेज दिया। साथ ही उच्च न्यायालय ने इस मामले में येदियुरप्पा को अग्रिम जमानत दी है। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने उस महिला और उसके बेटे के परिवार से मुलाकात की जिन्होंने हाल ही में मालवली तालुके के कोनापुरा गांव के एक माइक्रो फाइनेंस फर्म द्वारा उनके घर को जब्त करने के बाद आत्महत्या कर ली थी और सरकार से सभी प्रकार की सहायता देने का वादा किया था। मृतक ने एक माइक्रो फाइनेंस फर्म से 6 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसने लोन न चुका पाने के कारण उनके घर को जब्त कर लिया। परिवार के सदस्यों ने स्थानीय पुलिस पर फर्म के कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करने और जब्ती के दौरान परिवार को बच्चे के साथ घर छोड़ने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। मृतक महिला की बेटी मानिक्या ने विपक्षी नेता से मदद की अपील की है। परिवार ने यह भी कहा है कि कोई भी मंत्री
उससे नहीं मिला। माणिक्य ने कहा, हम अपने रिश्तेदारों की मदद की वजह से जिंदा हैं। हमें नहीं पता कि कैसे आगे बढ़ना है क्योंकि हमारे पास कोई सहारा नहीं है। अशोक ने परिवार को भरोसा दिलाया कि वे उनके साथ खड़े रहेंगे और सरकार पर दबाव डालेगी कि उन्हें राहत दी जाए। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर कुमार से फोन पर बात की और घर जब्ती के दौरान स्थानीय पुलिस के व्यवहार की निंदा की। उन्होंने कोर्ट के आदेश का पालन करने के बहाने परिवार के सदस्यों को घर से बाहर निकालने वाली महिला पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि परिवार के सदस्यों को कुछ समय दिया जाना चाहिए था। नागरिक उड्डयन मंत्रालय MOCA ने शनिवार को कहा कि कर्नाटक सरकार मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे MIA पर रनवे सुरक्षा मूल पट्टी और रनवे अंत सुरक्षा क्षेत्र के लिए आवश्यक 32.97 एकड़ अतिरिक्त भूमि सौंपने के लिए सहमत नहीं हुई है। लोकसभा में डी के सांसद कप्तान ब्रजेश चौटा के आंतरिक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI ने सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP के तहत बेहतर प्रबंधन और विकास के लिए MIA को मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे लिमिटेड MIAL को पट्टे पर दिया। MIAL ने रनवे सेफ्टी बेसिक ट्रिप और रनवे एंड सेफ्टी एरिया के लिए 32.97 एकड़ अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता का अनुमान लगाया था। मंत्री ने कहा, जब कर्नाटक सरकार ने AI को मुफ्त में भूमि सौंपने के लिए MOC की अपील की और जवाब नहीं दिया। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक सरकार ने अनुसंधान और नवाचार गतिविधियों में सहयोग के लिए लिवरपूल विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बीदर दक्षिण के मदकनली ग्राम के सरकारी PU कॉलेज में खेलकूद स्पर्धा। कर्नाटक सरकार 25,000 शिक्षक रिक्तियों को भरने की योजना बना रही है, मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा। मूडा मामला, RTI कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने कहा, लड़ाई जारी रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7 हर खबर के लिए। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।